Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Okay, beta. So now we are going to continue from the last thing that we were discussing, that is the chemical symbol, which is the identity of an element. Okay, beta. So up till now, again, I'm just going with a quick recap. One more thing I need to tell you, that the class which we were unable to like have on Wednesday, I'll be placing as like the separate class or third class or the scheduled class on I believe Thursday or Friday maybe of this week, na? Apart from the regular two classes of Monday and Wednesday. Okay, so coming towards the very first chapter that we discussed, and alongside it, we also had some discussions of states of matter over here at the start of this, and also when we were discussing the syllabus in our very first orientation class, which was a very important class, as I have told you all previously. ओके तो सबसे पहले बेटा, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये इनिशियल बातें हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी कर ली हैं रिगार्डिंग मैटर, एटम, एलिमेंट, subatomic particles and everything, much of it, the atomic structure, then the proton number, the mass number, and then the chemical symbol, which is the identity of an element. ठीक है, chemical symbol क्या होता है बेटा? एलिमेंट की आइडेंटिटी होता है. We have some new students as well in the class today, so I just obviously for them I am just rediscussing a few of the things कि यहाँ तक बेटा हमने already चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, and I believe these are very few basic things most of you might have an idea of previously. Mass number is actually the total number of protons and neutrons in an atom of an element. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं. And I hope I am audible as well to all of you. So, after doing chemical symbol, we did a few examples of it, like lithium, carbon, sodium, potassium, and we just wrote the number of protons, neutrons, and electrons in all of these, as you can see over here in the chemical symbol, because these are the very few basic things that you all should have a clear idea of so that we can move forward with it. So this is A and this is Z. So A is actually the mass number, and mass number is actually the proton and neutrons, the combined number of protons and neutrons. And as I told you also, that in some of the books, this is like this, that A is there and Z is there. Like the bigger number can be at the bottom as well. So obviously you can see the difference between the bigger and the smaller number. The bigger number is going to be the mass number, which is the sum of protons and neutrons, and the smaller number is the proton number. When you subtract the p plus n, like when you take p plus n first and you subtract p out of it, you're getting n. The number of neutrons कैसे मिलेंगे हमें? When we do a minus z, a minus z. This is not a to z. ये ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है और नहीं लग रहा है और ना लगना चाहिए आपको. This is a minus z, like this minus this. So you're getting the number of neutrons from this. And we did a few examples of it, like lithium इज 7 and 3. तो बेटा लिथियम में हमारे पास जो मास नंबर है, या फिर जिसे हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियन नंबर, दैट इज 7. And then the protons are 3, neutrons, the neutrons are 4, and the electrons are also 3, same as the number of protons that you have. ठीक है, अच्छा. Then for sodium, 23 is the mass number, 11 is the protons, 11 is the electrons, and 12 are the neutrons. How I'm getting 12 as the neutrons? Because I subtracted 11 out of 23, like this. Okay, carbon, very easy. 666, 6 protons, 6 electrons, and 12 minus 6 is 6 neutrons. Potassium, 19 protons, 19 electrons, and 20 neutrons. And then a last thing which on which we ended all this was this question, that why an atom is electrically neutral. We discussed always in an atom, because if it is called an atom, the reason behind this being called an atom is that it's neutral. Because if it's turned into an ion, तो या तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए हैं या गेन कर लिए हैं, तो therefore it becomes the ion, because it will have either more protons or more electrons. But in the case of it being an atom, it is always going to be neutral, because in an atom there are same number of protons and electrons. Therefore, the positive charges cancels out the negative charges. A very common question that is being regularly asked by the examiner in a very basic section of atomic structure in your
theory paper. Okay, after doing all this, moving towards a very new thing, which is also like connected to it, but a very different topic, a very different topical study, a very different topical understanding over here, that is of isotopes. So that is what I'm going to write over here. Acha, before moving ahead to the isotopes, I just want to know quickly, अब तक बेटा हमने जो भी करा है, is that clear to all of you? Once more, I need a confirmation just. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब्दुल्ला, आयशा, फातिमा, हुरिया, हमना, अहमद, जी सर। Mariam, Ryan has said, Umar, Sara. I know some of you have already said, but I'm just recalling the names of everyone. Okay, ठीक है, हमना, हुरिया, ओके बेटा. ओके, एंड आई ऑल्सो लाइक सेंड द रिकॉर्डिंग्स ऑन द ग्रुप एज वेल ना, ताकि अगर हम अभी स्टार्ट कर भी रहे थे इसको ऐसे, तो इससे पहले तक का सारा हमने वहां पे किया हुआ था. सो आई होप दैट यू ऑल माइट हैव सीन दैट एज वेल. सो कमिंग अप टूवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई हैव टोल्ड यू, इसके बारे में बहुत ज्यादा एग्जामिनर पूछता है आपसे, क्योंकि बहुत ही एक ऐसी चीज है जो इस चैप्टर को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दी है. एटॉमिक स्ट्रक्चर में वी डू नॉट हैव ऑल द थिंग्स which are difficult, or like most of the things are easy, but this is only something which is not, we can say, difficult, but something which makes the topic interesting or slightly different. That is the concept of isotopes. ठीक है बेटा, सबसे पहले I am going to write the definition of isotope, because it has been asked many times, many times. I won't say quite a few times, I will say many times. First of all, over here I can better write about isotopes. ठीक है बेटा. So, first of all, before writing the definition itself, I'll just try to tell you by breaking the words how. Beta, in this word, you have iso and you have topes. In many of the cases, not only in the subject of chemistry, in many of the cases regularly, when we are talking about different terms, different terminologies, होता ये है बेटा कि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि एक जो टर्म होती है ना, उस टर्म के अंदर ही कहीं ना कहीं उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है. Even in the same way, in this term, and it's not obviously for every term, but most of them. So in this one, if you are breaking this in iso and topes, iso का मतलब होता है बेटा सेम, ठीक है, एंड टोप्स का मतलब यहां पर यूज होता है फॉर प्रोटॉन्स, सेम प्रोटॉन्स. तो मतलब हो गया सेम, और टोप्स का मतलब हो गया प्रोटॉन्स. Acha, there is like a whole lot of definition to write, but the main central idea of the definition is this. How? I'll tell you the whole definition, which emphasizes on each and everything. We say isotopes are atoms of the same element
with same number of protons and electrons. ठीक है बेटा. And if you like not are writing the electrons, like not writing this term of electrons, it's fine, somewhat fine. Isotopes are atoms of the same element with same number of protons and electrons, but with different number of neutrons. Somewhat like this. थोड़ा सा इसको भी हम different color use करते हैं, dark की जगह a bit of light or something. Which causes a change in their mass number. ठीक है बेटा. This is your whole definition which tells you about each and everything that is here. How? Now, first, before explaining you this, I'll tell you one more thing, the examples of it. The very first common example which I use for the explanation of this is the example of hydrogen. ठीक है बेटा. Hydrogen 1 1. Then hydrogen 2 1. Then hydrogen 3 1, like this. Okay, so how these three hydrogens are different from each other? सबसे पहले तो बेटा we'll write over here the protons ना.
छोटा नंबर जो होता है प्रोटॉन्स होता है। आई टोल्ड यू दिस कि वैसे तो ये नीचे है हमने जिस तरह लिखा है, बट एज आई टोल्ड यू दैट अगेन एज वेल कि जो छोटा नंबर है वो प्रोटॉन नंबर है, फिर ऊपर नीचे प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन एनी बुक इफ यू सी। सो वन वन में तो वैसे ही वन है, तो दिस इज गोइंग टू बी वन प्रोटॉन। ठीक है बेटा, इसका मतलब इसके अंदर बेटा क्या है, एक प्रोटॉन है। ठीक है, और हमेशा बेटा एक एटम के अंदर जब एक प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, वन इलेक्ट्रॉन। And if we talk about neutrons, 1 minus 1, this is going to be 0. The only element which does not have neutrons is hydrogen, and particularly this isotope of hydrogen, the 1 1 isotope, the hydrogen 1 isotope. So here it's going to be 0 neutrons. एक स्टूडेंट ने रिसेंटली ये देखा था क्लास में, तो वो देखे कह रही है सर ये तो ऑन लिख दिया आपने, ऑन का क्या मतलब। मैंने बोला ऑन नहीं लिखा हुआ, ये 0 न्यूट्रॉन्स हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जीरो को थोड़ा सा ना ऐसे बनाना चाहिए, जीरो थोड़ा डिफरेंट होता है ओ से। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑन, दिस इज 0 न्यूट्रॉन्स। ओके। अच्छा, अब आपको बेटा नजर आ रहा होगा कि इवन इन दिस हाइड्रोजन द स्मॉलर नंबर इज 1, so 1 proton 1 electron, and this time 2 minus 1 is 1 neutron. And over here in the third one, you can see this is 2 न्यूट्रॉन्स। तो बेटा इन एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको एक चीज डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकता हूं दैट द डेफिनेशन सेज आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। हर एक बात को हम डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। सो द आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आप ये कह सकते हो दीज थ्री आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और आप ये कह सकते हो दीज थ्री आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। ये तो पहली बात हो गई। सेकंड, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन सी फ्रॉम दीज कि इनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम है, विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, but with different number of neutrons, neutron different, different, which is the actual change in them which makes them isotopes, which causes a change in their mass number। mass number क्या है इसका 1, इसका क्या है बेटा 2, इसका क्या है 3। so the whole definition I believe is understood from just directly looking and seeing this example of the three hydrogen atoms you have in front of you. These three hydrogen atoms we can say are isotopes of each other, or they are isotopes of hydrogen. And the way they are different is their number of neutrons, which is the actual thing which makes them the isotopes. अब आइसोटोप्स बेटा होते क्या हैं एक्चुअल में। आइसोटोप एक चीज होती है, हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, हर एलिमेंट के। ठीक है बेटा, हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स के दो हैं, कुछ के तीन हैं, सम ऑफ देम है फोर, सम ऑफ देम है फाइव, डिपेंडिंग ऑन दैट एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स उसके आज तक डिस्कवर हो चुके हैं, पता चल चुके हैं हमें कि एक सर्टेन एलिमेंट के कितने कितने आइसोटोप्स हैं आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। So for hydrogen, we do have three, but we have actually one more, and that is like negligible. The amount is negligible. अच्छा, इनके ना कुछ नाम हैं अपने अलग से, जैसे तो हम कहते हैं तीनों हाइड्रोजन है, बट इनके कुछ नाम हैं जो कि आपको याद तो नहीं करने हैं, बट आई एम जस्ट राइटिंग देम ओवर हेयर। दिस हाइड्रोजन एक्चुअली द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोटियम। इसीलिए इसका नाम प्रोटियम रखते हैं कि इसका मास सिर्फ एक है, जो कि इसके अंदर प्रोटियम की प्रोटॉन की अमाउंट है। ठीक है, प्रोटॉन भी इसमें एक है, तो इसी के नाम पे नाम रख दिया प्रोटियम।
इसे हम कहते हैं बेटा ड्यूटेरियम. दिस वन इज नोन एज ड्यूटेरियम. क्यों? क्योंकि टू है इसका मास, और ये जो वर्ड है डू, डुअल, डुओ, डाई, ये यूज होते हैं दो के लिए. एंड दिस देन वेरी इजीली is going to be called tritium. No, no, beta. Initially, I said, Fatma, that you don't have to memorize these. They do ask this, as I have seen a question of it, but they didn't ask you to name them. They just gave you the name and they asked some properties regarding it. Isotopic abilities से मुतल्लिक ही कोई बात थी जो कि आपको वैसे ही पता है, but not the name they wanted. They wrote the name already over there. सो दिस इज. और इसके अलावा एक क्वार्टियम भी होता है, चौथा वाला, जिसमें 4 और 1 होता है यहाँ पे. बट दैट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इसलिए हम उसे जनरली एज अ केस काउंट नहीं करते हैं. तो एक्चुअली वन मोर थिंग आई कैन टेल यू अबाउट दिस बेटा, ये तीनों आइसोटोप्स हैं. तो ये इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है बेटा. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. तो इन तीनों का अलग अलग परसेंटेज अवेलेबल होता है हमारे पास ऑन दी अर्थ. आज तक जितना भी आपके पास हाइड्रोजन आपको अर्थ पे नजर आया है ना, वो इन तीनों की हिसाब से है. यानी कि बहुत सारा उसमें से ये वाला है, कुछ ये वाला है, और कुछ ये वाला है. एंड वी ऑल्सो हैव नोन द परसेंटेजेस ऑफ दीज, कि जो हाइड्रोजन 1 1 है, प्रोटियम जो है, उसका बहुत ज्यादा अमाउंट है इन कंपैरिजन टू दीज टू. So before moving ahead to the next thing that we have, I am just quickly going to ask every one of you that have you got the concept of isotopes or not. आप देख रहे हो मेन आइडिया जो था हमारा सेम. आइसो का क्या मतलब था बेटा? सेम. और टोप का क्या यूज हो रहा था? फॉर द टर्म प्रोटॉन, सेम प्रोटॉन्स. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर जगह, वो क्या है बेटा? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस. कुछ भी चेंज हो सकता है, प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकता. और बेटा प्रोटॉन वैसे भी एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है. सिंबल तो आइडेंटिटी है, सिंबल तो उस एलिमेंट को देखते हुए आइडेंटिटी है, लेकिन उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? उसका प्रोटॉन. बिकॉज प्रोटॉन इज समथिंग विच इफ इज अलॉटेड टू एन एलिमेंट, वो किसी और का नहीं है. अलॉटेड इन सेंस कि उसे कोई दिया नहीं जाता है, कोई उसको कोई हम नंबर टैग नहीं करते हैं. वो उसके अंदर एक अमाउंट होती है, और वो ऐसी अमाउंट है जो सिर्फ उसके अंदर है और किसी के अंदर नहीं है. अगर हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है, तो सिर्फ हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है, और किसी का भी नहीं होगा. तो ये एक ऐसी चीज है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, विच इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, द प्रोटॉन नंबर. क्योंकि प्रोटॉन जितना है उतना इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही है, तो वो बात तो फिर भी कोई इतनी वाली वैसी नहीं है, तो सेम सेम चल रहा है. तो प्रोटॉन होने की वजह से ही उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने प्रोटॉन्स हैं. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक ऐसी चीज है जो डिफर कर जाती है, जिसकी वजह से ये चीज आइसोटोप कहलाती है. सो द मेन थिंग इज सेम प्रोटॉन्स, आइसोटोप. ठीक है बेटा. सो आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स और नॉट? अब्दुल्ला, आयशा, Yes, फातिमा, sir. हुरिया, हमना, अहमद, मरियम, रयान, उमर, सारा. Yes, sir. बेटा किसी को भी कोई भी चीज पूछनी हो, यू आर गुड टू गो, आप पूछ सकते हो. ठीक है. सो नाउ coming up towards another thing, a very important thing, I also made a test from this chapter for you all. Like when we will finish this chapter, we will be like doing that test. I'll be giving you that. So more importantly, there is another thing that I need to discuss. बेटा होता ये ना कि बहुत सारी जगहों पे आपको जब हम टेस्ट करते हैं, तो वी गिव यू द पास्ट पेपर ओरिएंटेड थिंग्स एंड ऑल, because eventually you have to deal with that, you have to do that. But the main important thing is the core concept, the definition, the concept. वहां पर students do lack, like the conceptual thing, the book thing, that thing which is the core inside of the topic ना, तो वो हम पहले टेस्ट करते हैं in a formative assessment, which is more of a concept based assessment that will obviously be held later. So now moving on towards another thing in this chapter, that is called
आइसोटोपिक अबंडेंस एंड द एवरेज मास। ठीक है, आइसोटोपिक अबंडेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहले दिस माइट बी अ न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ यू और सम ऑफ यू, बट इट माइट बी something that you have heard before. Depends. You might be aware of it. Isotopic abundance। एक तो वर्ड होता है बेटा abandon, वो मतलब होता है that like something cease, if something cease to exist, और किसी चीज को खत्म कर देना, बंद करवा देना, कोई एक्टिविटीज को अबेंडन कर देना। ये कैसे भी आप याद कर सकते हो। अलग है, ठीक है ना, बन अलग है, डांस अलग है। एक बन जो है ना वो डांस कर रहा है, अबंडेंस, अबंडेंस। ठीक है, आइसोटोपिक अबंडेंस होती क्या है। दिस नॉट समथिंग विच यू डू डू आस्क यू, बट यू शुड हैव एन आइडिया एटलीस्ट ऑफ इट। आइसोटोपिक अबंडेंस को एक्चुअली होता क्या है। आइसोटोपिक अबंडेंस, इट इज द it is the amount of all the it is the amount of isotopes present in an element which is needed to we won't say find out, थोड़ा सा एक suitable word is like calculate, although that means the same, present in an element which is needed to calculate, क्या calculate करने के लिए, the average mass which is known as A R
ऑप्शन ए आर का मतलब होता है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एवरेज मास, अमाउंट ऑफ आइसोटोप्स जितनी भी होती है बेटा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितने भी एलिमेंट्स है बेटा उन सबके अंदर जो है आइसोटोप्स मौजूद हैं। किसी में सिर्फ दो हैं, किसी में तीन है, किसी में चार भी हैं, पांच का केस भी हमने देखा है। तो बेटा जितने भी हैं उन सबके अंदर आइसोटोप्स तो हैं। ठीक है, अब आइसोटोपिक अबंडेंस इज द अमाउंट कि भाई किसमें कौन सा वाला आइसोटोप कितना मौजूद है और वो क्यों चाहिए होता है। वो पहली बात तो पता तो वैसे ही उसने हमें चलना है उसके बारे में, और उसकी नीड हमें इसलिए है ताकि हम उस एलिमेंट का एवरेज मास कैलकुलेट कर सकें बेटा। उसका एवरेज मास हम कैलकुलेट कर सकें। अब कैलकुलेट कैसे करना है, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। हम एक केस और करते हैं यहाँ पर आइसोटोप्स का, दैट इज फॉर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन बेटा। किसके आइसोटोप्स हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा? आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, एक हम यहाँ लिख देते हैं Cl। ठीक है, और एक ऐसा ही Cl हम भाई यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक हो गया। ओके, दिस Cl, दिस क्लोरीन एक्चुअली विच एग्जिस्ट, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, दिस इज 37 17, एंड दिस वन इज 35 17। अच्छा, 37 17 जो है बेटा, इसमें मैं आप लोगों से अगर पूछूं, कोई मुझे बता दे जल्दी से, कितने प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं? सर 37 प्रोटॉन, 37 इलेक्ट्रॉन्स और 20 न्यूट्रॉन। रैन दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर 37 प्रोटॉन, 37 इलेक्ट्रॉन्स और 20 न्यूट्रॉन। रैन क्या हो गया बेटा? 17 प्रोटॉन्स, 17 प्रोटॉन, तो 17 20 न्यूट्रॉन्स। उल्टा कर दिया था मैंने। मिक्स कर दिया आपने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपने ऊपर वाला नंबर बोल दिया गलती से। 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं। हमना हैज अ क्वेश्चन, आई थिंक आई नीड टू जस्ट look into the chat first of all to see any other answer, then the question which Hamna wants to ask. Okay, Umar is also saying it right. Fatma Farad is also saying it right. Yes, Hamna, what question is it? Okay, you want to tell. Okay, okay. 17 protons, 17 electrons. You wrote P twice. So 17 P, 17 E, and 20 N. Yes, better. That is the correct answer. And I know Ryan को भी सही आंसर पता है, गलती से उन्होंने ऊपर वाला नंबर बता दिया था। So this is yes 30। मैं भी वही लिखा था रैन, देख रहे हो? 17 प्रोटॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स। एवरीवन इज गेटिंग इट राइट आई बिलीव। ठीक है बेटा। यस। एंड द सेकेंड वन इज, ये सेम रहेंगे, दोनों आइसोटोप है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे। न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा कितने? न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू बी 18। ऐसे ही है, 35 में से आप 17 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 18 बचता है। ठीक है बेटा, दीज आर दी आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब ये जो बेटा आइसोटोप्स हैं, ये तो आपको पता चल गया कि ये दो आइसोटोप्स हैं और दो ही हैं क्लोरीन के लिए। आई नीड टू टेल यू दिस कि क्लोरीन के लिए दो ही आइसोटोप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अब इन दोनों आइसोटोप्स में से हमारे पास, ये हमें कैसे पता है कि भाई कौन सा आइसोटोप कितना मौजूद है? ये आपको याद नहीं करना है। दिस विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर इफ अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कम्स इनटू योर एग्जाम, कि भाई कौन सा वाला जो है वो कितना परसेंट अवेलेबल है इन द अर्थ। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा भाई? आपको इसके बारे में आपको बताया जाएगा।
ये वाला जो आइसोटोप है ना बेटा, ये वाला आइसोटोप होता है 25% अबंडेंट, यानी कि जितना भी क्लोरीन है ना हमारे पास, जितना भी क्लोरीन है, उस सब में से जो ये वाला है ना, जिसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स हैं, वो कितना है टोटल में से? 25%। यानी कि समझो अगर आपके पास 100 क्लोरीन एटम के सैंपल्स हैं, तो उसमें से 25 किसके होंगे? ये वाले होंगे जिसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स निकलने वाले हैं। और जो दो ही आइसोटोप अगर हैं ऑब्वियसली, तो दूसरे वाले का तो जाहिर सी बात है आपके पास कितना होगा बेटा? 75%। तीन होते तो आप नहीं बता सकते, बट इफ आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी कि इसके दो ही आइसोटोप होते हैं, वैसे तो ये बात आपको बताई जाएगी, बट फिर भी आपको पता चल ही जाएगा कि अगर परसेंटेज वाइज हम देख रहे हैं, तो इफ A1 इज 725, तो दिस इज गोइंग टू बी 75%। ठीक है बेटा, तो ये आपको एग्जामिनर ने प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये 25% है, ये 75%, 25%, 75%। सो कैलकुलेट द एवरेज मास ऑफ दिस, कैलकुलेट द एवरेज मास। अब आपको बताता हूं बेटा एवरेज मास आपने कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बहुत इजी है, बहुत इजी है, इट्स अ न्यूमेरिकल थिंग नाउ, कैलकुलेटिव थिंग। जो ये मास नंबर है ना बेटा, ये मास नंबर जो है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद द परसेंटेज, फिर आपने इसे प्लस करना है इनटू द सेकेंड मास नंबर इनटू द परसेंटेज, और डिवाइड कर देना है बाय टोटल परसेंटेज, दैट इज ऑब्वियसली 100। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम फॉर्मुलेटिवली लिख लें बेटा, तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट? चलो मतलब 37 × 25 यस यस प्लस यस 35 × 75 यस, अपॉन अपॉन 100। 100। यस यस यस, इसको मैं सिर्फ लिख के आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकली, फॉर्मुलेटिवली हम इसे कैसे लिखेंगे। मास ऑफ, एवरेज मास है ना। एवरेज मास नहीं, तो वो तो फाइनल आंसर है आपका ना, वो एवरेज मास है क्लोरीन का। मास ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई इट्स अबंडेंस। थोड़ा सा हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा सो दैट वी कैन सेव दिस स्पेस। प्लस and that all to be divided by
total abundance. This is your formula and this is the case for two isotopes only. अगर तीन होंगे तो ये रिपीट होता रहेगा like this. आई टेल यू लेटर ऑल्सो, मतलब ये लगाने का क्या है, अगर तीन आइसोटोप हुए तो मास ऑफ आइसोटोप वन इनटू द अबंडेंस जो परसेंटेज उसकी गिवन होगी प्लस मास ऑफ आइसोटोप टू इंटू इट्स अबंडेंस, ठीक है, प्लस माइनस मास ऑफ आइसोटोप थ्री इंटू इट्स अबंडेंस, डिपेंडिंग कितने भी आइसोटोप्स हैं, टोटल डिवाइड होगा टोटल अबंडेंस के साथ। टोटल अबंडेंस ऑब्वियसली 100 हो जाएगी जो फुल परसेंटेज है। सो हाउ वी आर गोइंग टू बेटा कैलकुलेट द एवरेज मास इन दिस केस ऑफ दीज टू सैंपल्स ऑफ क्लोरीन बेटा। इसका मास कितना है बेटा, 37 है। 37 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ बेटा, 37 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है। 37 क्यों बेटा, वो इसका मास था और 25 क्या था इसका बेटा, परसेंटेज। प्लस का साइन लगा दिया बीच में। दूसरा आइसोटोप का मास कितना किया मैंने बेटा, हमें 35, दिस इज ओवर हेयर, और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी गिवन परसेंटेज के साथ। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर एंड दिस टोटल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई हाउ मच, 100। अबंडेंस कितनी होगी टोटल, 25 और 75। कोई अगर ये पूछना चाह रहा हो कि सर ये 25 75 के परसेंटेज का साइन लगाना है, कोई जरूरत नहीं है बेटा, वो तो वैल्यूज हैं। तो 25 प्लस 75 ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी 100, ठीक है बेटा। तो इफ यू ब्रेक इट डाउन, वैसे आप ब्रेक करो वैसे करो, आप फाइनल आंसर जो भी कैलकुलेटर में इसका निकालोगे बेटा, कैलकुलेटर में इस वैल्यू को एग्जैक्टली प्लेस करो, अलग अलग से ब्रेक डाउन करो, जैसे भी करो, आपका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी फाइनली 35.5। ये पूरा जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है बेटा दैट इज गोइंग टू बी 35.5। तो हम अबंडेंस को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या मतलब परसेंट से, मतलब जैसे 25 75 या 25%। बेटा रायन आपकी आवाज थोड़ी सी सही से नहीं आ रही है, कैन यू से इट अगेन। अबंडेंस है मतलब 25 और 75, हम उसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, जैसे कि 20 या 25% और 75% करेंगे। नहीं बेटा 25% नहीं ना, वो मतलब वही होता है ना उस चीज का, आपने एक तरीके से दोनों का अलग अलग से परसेंटेज निकाल लिया। अगर आप इसको एक्सक्लूसिवली भी देखते हो ना, 37 × 25/100 अलग कर दिया आपने, यानी 37 का 25% निकाला आपने सिर्फ, क्योंकि उतना जो मास है वो कितने है, 25% वाला ही है। और जो रिमेनिंग दूसरा वाला आइसोटोप है वो कितना परसेंट है, 75, उसका आपने एक तरीके से 75 परसेंटेज निकाल लिया। हम निकालते हैं ना परसेंटेज, आपको बोले अगर आप 50 का निकालो 50 का निकालो 80%, तो 50 × 80/100 कर लेते हो आप। तो 37 जो नंबर है उसका आपने 25 परसेंटेज निकाला और 35 का 75% निकाला, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, दैट इज एवरेज मास। दिस इज 35.5। सो क्लोरीन के लिए बेटा एक्चुअल में जो एवरेज मास होता है वो होता है 35.5। एंड जनरली like when we see chlorine written in the periodic table, beta it is like this, Cl लिखा हुआ होता है, ठीक है। और भी थोड़ी सी प्रिसाइज वैल्यू होती है, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज हम इसको इस तरह से कहते हैं लाइक दिस। एंड व्हाई इट इज अफेक्टिंग लाइक दिस, बिकॉज दिस इज द एवरेज मास, और हर एलिमेंट का एवरेज मास होता भी है और आपको निकालना भी होता है, एंड दैट इज ओनली बाय द हेल्प ऑफ द परसेंटेज अबंडेंस, द आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट। मरियम हैज वन क्वेश्चन, so आइसोटोपिक अबंडेंस नो मैटर व्हाट फॉर्म, हाँ हाँ नो मैटर व्हाट फॉर्म
क्वेश्चन में दी जाएगी। जी जी बेटा, वो तो लाजमी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो मैंने वाला क्वेश्चन भी आपने देखा था जो मैं बताया था नंबर वाला। तो जैसे भी हो, वो भी खैर केस आता नहीं है नंबर वाला, बट फिर भी परसेंटेज के तौर पे ही आएगा अगर सवाल आता भी है आपके पास, और लाजमी गिवन होगी। वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे परसेंटेज पूछे ना वो, ये वाली बात है। और इवन जो आप लोगों को मैंने एक परसेंटेज पूछने वाला क्वेश्चन कराया था, दैट वाज ओनली अ डिफरेंट थिंग, जस्ट अ स्लाइट थिंग टू डू सम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स मैकेनिकली, मैथमेटिकली। सो बट वो पूछा नहीं जाता है आपसे। तो खैर ये है ओनली द थिंग विच इज गिवन टू कैलकुलेट द एवरेज मास। ठीक है बेटा, तो प्लीज प्लीज बेटा, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, आप लोगों ने करने हैं उसको सॉल्व। उससे पहले प्लीज टेल मी, आर यू कंप्लीटली ओके विद इट? आर यू गेटिंग इट? अब्दुल्ला, आयशा, फातिमा, हुरिया, हमना, Mariam, Ryan, Umar, Sarah, you can make thumb reactions, you can say in the mics, or you can write in your chats. Anyhow, just I need to know Yes, that sir. you are getting it or not. कोई भी इशू है प्लीज आस्क। ठीक है। ठीक है। ठीक है। Okay, 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 ठीक है, ठीक है, एवरीवन इज गेटिंग इट। सो द नेक्स्ट वन आई एम गिविंग यू, वैसे ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो जो लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं आंसर्स को, वो अपना आंसर मुझे डायरेक्ट बता ना दें, सॉल्व करें। जिनका आंसर आ गया है, वेट करें फॉर अदर्स टू डू इट ना। आई नो रैन यू डू इट वेरी क्विकली, तो जस्ट वेट, आप अपना आंसर निकाल लेना। ओके, वेट, उमर हैज समथिंग टू आस्क। यस यस बेटा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बेटा, ये तो ऐसी चीज ही नहीं है ना कि आपको निकालनी पड़े। ये तो एक केमिकल मेथड होता है जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उसके थ्रू किसी भी एलिमेंट के एटम के सैंपल को डालते हैं तो पता चलता है। ये हम थोड़ी पता लगा सकते हैं, ये तो आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा बेटा। वेल द क्वेश्चन आई गिव, आई हैवंट रिटन इट बेटा, मैं लिख रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी लिखूंगा क्वेश्चन। सो दिस इज समथिंग। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं मैं, खैर वो मैं क्वेश्चन के बाद ही बता सकता हूँ। सो दिस एग्जाम्पल इज फॉर अनदर सेट ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट ब्रोमीन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई नो आप लोग जल्दी कर लोगे। तो अपने आंसर्स प्लीज चैट बॉक्स में नहीं लिखना, ताकि सब लोग देखें, सब लोग करें, फिर विल क्विकली डिस्कस इट। सो द नेक्स्ट वन इज बेटा फॉर ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स होते हैं इक्वल प्रोपोर्शंस में। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी बहुत दफा पूछा गया है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं, तो ये बात पता होनी चाहिए। पर्टिकुलरली फॉर ब्रोमीन, के ब्रोमीन के दो आइसोटोप होते हैं और वो इक्वल प्रोपोर्शंस में होते हैं। ये वाला ब्रोमीन जो होता है बेटा, एक वो होता है 79, उसका मास होता है, प्रोटॉन नंबर 35 है। प्रोटॉन नंबर नहीं भी लिखा हो, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज प्रोटॉन नंबर की हमें नीड नहीं है कैलकुलेशन के लिए, वी नीड ओनली द मास नंबर। सो दिस इज फॉर दिस ब्रोमीन। ठीक है। एंड द अदर सैंपल ऑफ ब्रोमीन, और मुझे पता भी है जिनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का अप्रोच क्लियर है, वो फौरन देखते ही परसेंटेजेस को आंसर बता देंगे, तो प्लीज डू नॉट टेल इट, वेट फॉर अदर्स टू डू इट एज वेल। दिस इज 50% अबंडेंट। ऐसी बात है, इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? 50 ये और 50 वो। ठीक है बेटा, 50-50% है। आंसर निकालो जल्दी से इसका एवरेज मास। ठीक है, और जो कर ले हैं वो अपने पास ही रखें आंसर्स, आई विल आस्क यू। आई एम गिविंग यू 2 minutes, आई एम कमिंग इन अ while, you can start it. Done, sir. ओके बेटा, सो आई होप दैट एवरीवन इज कंप्लीटेड, बिकॉज आप लोगों के मैसेजेस Yes. आ गए हैं डन के। सो द आंसर इज 80, एंड आई नो यू ऑल माइट हैव गॉटन दैट। सो the reason behind this is actually 80 is the number which is exactly in between these two values, because both have the same dominance in terms of the percentage, or in terms of the amount, they both are same. So the value lies exactly between the two masses, between 79 and 81. In the very center there is 80, जो कि जितना दूर 79 से है बेटा, उतना ही दूर 81 से भी है।
somewhat lies in between. Everyone has gotten 80 or not, beta? किसी का नहीं आया है 80? तो please tell me or you can ask me. It's the same thing. नहीं सर उसमें 79 multiplied by 50 less 81 multiplied by 50 divided by 100 भी 80. ठीक है. Umar, what are you saying? 2.6? Two point six? No, no, beta, it cannot be anyhow. You have to take the mass 79 multiplied by the percentage given, 79 multiplied by percentage, then add it as we are averaging it. So 81 into 50, this adding into this, divided by total abundance, which is 50 plus 50, 100, because 100% is total, you're getting 80. If there is still someone who is not getting 80, please tell me, beta. Umar, are you getting it now? Sarah, Mariam. Yeah, okay, okay, I got it. Sarah, Mariam, Hamna, Huria, Fatima, Aisha, Abdullah. ओके आयशा, आपका आ गया बेटा 80. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. अब्दुल्ला ऑल्सो गॉट इट. फातिमा, मरियम, सारा. ओके, वेटिंग फॉर सारा. सारा, यू गेटिंग इट? ओके सो अब आपने ये देखा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की हम डिस्कशन करेंगे, दैट द आंसर विच केम दैट इज एग्जैक्टली इन सेंटर ऑफ दीज टू वैल्यूज, द रीजन बीइंग the distribution same between these two, like 50% for the 79 and 50% for the 81. So it's exactly in between the average of these two values, 50-50% बिल्कुल बीच में. अगर बेटा मैं आपसे यहां पूछूं क्लोरीन के केस में, व्हाट इज योर फाइनल आंसर बेटा? 35.5. एवरीवन गॉट इट? एवरीवन अग्रीज टू इट? yes 35.5. आप लोग मुझे बता सकते हो इन दोनों में से किसके ज्यादा करीब है बेटा? सर ऑब्वियसली सर 35 पे 35 के कौन कौन अग्री कर रहा है? 35 के करीब है. 35.5. अदर्स ऑल आर अग्रीइंग टू इट. यस, 35 के ज्यादा करीब है. इसको हम ऑन स्केल यहां अगर बनाते हैं बेटा, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. यहां से बहुत दूर है, सारा दूर हो गया बेचारा. और यहाँ के बहुत ज्यादा नजदीक है. वाई? ऐसा क्यों है बेटा? बिकॉज द डोमिनेंस ऑफ द 35 क्लोरीन आइसोटोप इज सीन ओवर हियर. जिसका जो आइसोटोप ज्यादा होगा, अमाउंट में ज्यादा होगा, परसेंटेज में ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली द एवरेज वैल्यू आंसर ऑफ द मास इज गोइंग टू बी नियरर टू दैट वैल्यू. ब्रोमीन के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि दोनों 50-50% थे.
तो जितना डिस्टेंस इससे है उतना ही डिस्टेंस इससे है, इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम। इट इज नॉट द केस इन द केस ऑफ क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन में ये 35 की तरफ आंसर जो है आपका जा रहा है। वाई? बिकॉज द हायर परसेंटेज ऑफ दिस। And one more thing I will tell you, one more thing I will tell you, which we do not have like discussed as a question, but here we can discuss it now. बेटा, हाइड्रोजन का जो एवरेज मास होता है किसी को पता है? आप चेक कर सकते हो नेट पे जाओ तो, बट मैं बता सकता हूँ आपको। हाइड्रोजन का जो एवरेज मास होता है बेटा, वो होता है 1.008। The relative atomic mass or the average mass of hydrogen is how much बेटा? कितना? 1.008। ये तो वन के कितना ज्यादा करीब हुआ। तो इसका रीजन यही है बेटा, क्योंकि जो ये वाला हाइड्रोजन है ना, पहला वाला हाइड्रोजन, ये 99% से भी ज्यादा होता है। 99% से भी ज्यादा अबंडेंट है। और ये दोनों आइसोटोप्स मिला के भी लेस देन 1%। तो जाहिर सी बात है भी, दो आइसोटोप जिसका मास 2 और 3 है, वो इतना कम परसेंटेज में होंगे। सो हाउ इट इज पॉसिबल दैट द आंसर इज गोइंग टू बी नियर टू देम? किसी तरह पॉसिबल नहीं है। दिस वन इज मोर देन 99%। आई कैन राइट इट इंस्टेड, मोर देन 99%। दैट इज वाई द आंसर इज वेरी मच क्लोजर। मतलब यानी कि आंसर अगर 1.008 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कि बहुत ही ज्यादा करीब है वन के। इसलिए हाइड्रोजन के मास को हम कंसिडर ही वन करते हैं। बिकॉज 1.008 तो ऐसी वैल्यू है कि उसको आप डेसिमल में लिखना ही बड़ी बेवकूफी है। वन ही आंसर है, उसको हम वन ही कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन वन आइसोटोप प्रोटियम। इस तरीके से क्लोरीन वाली बात भी हो गई, इस तरीके से ब्रोमीन वाली बात भी हो गई। आर यू ऑल गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे? प्लीज प्लीज टेल मी बेटा, कोई भी चीज नहीं अभी तक आ रही है, यू कैन आस्क मी एज यू वर ऑलरेडी डूइंग बिटवीन द क्लास। जहां भी प्रॉब्लम है, यू नीड नॉट टू हेजिटेट। ऑल्दो आई एम गिविंग यू वन मोर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एज यू आर ऑल्सो सेइंग दैट एवरीथिंग इज क्लियर। सो इसी का एक और क्वेश्चन हम अभी करते हैं। आई विल गिव यू टू डू इट एंड आई नो यू विल बी एबल टू find the answer. This is for the last two isotope element that we are going to discuss, although there are others as well, but ऐसा एक और जो दो आइसोटोप वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है नियॉन का। नियॉन के भी सिर्फ टोटल बेटा दो ही आइसोटोप्स होते हैं। नियॉन इज द 10th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इट इज लाइक हैविंग अ मास प्रोटॉन नंबर ऑफ 10। सो नियॉन जो होता है बेटा, नियॉन Ne होता है उसका सिंबल। ठीक है, इट इज अ नोबल गैस। ठीक है बेटा। सो दिस इज नियॉन। ठीक है, नियॉन का मास 20 और प्रोटॉन नंबर तो खैर 10 होता है, जिसकी हमें वैसे नीड नहीं है, बट आई एम राइटिंग इट। एंड द अदर आइसोटोप ऑफ नियॉन इज 22 एंड 10। ठीक है। अच्छा, दिस वन इज हाउ मच बेटा? ये स्ट्रेट लाइन ओवर देयर एज वेल। ये वाला तो खैर 90% है। 90 अजीब सा लग रहा है। एंड दिस इज
10%। अब आप लोगों ने बताना है मुझे इसका एवरेज मास कैलकुलेट करके जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन। तो 20.2। यस यस यस, बहुत जल्दी जल्दी कर लिया आपने कैलकुलेटर में। फातिमा गॉट इट राइट, हुरिया गॉट इट राइट, रायन हैज गॉटन इट राइट एज वेल। ठीक है। यस उमर, दैट इज करेक्ट, 20.2। ओके हमना, दैट इज करेक्ट। सारा, दैट इज करेक्ट। आयशा बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने दिया है फॉर नियॉन। ठीक है। दीज टू isotopes आर here and the masses are also written and the percentages are also given। ठीक है ना। मास इसका निकालना है आपने, एवरेज मास 20 × 90। ठीक है। प्लस इसको यहाँ कर लेते हैं ना, वी हैव स्पेस ओवर हियर, नहीं खामा का नीचे लेके चला गया। या here it is। So as you all have, like most of you have done it, it is 20 × 90, यानी कि मास इंटू दी परसेंटेज, प्लस आ जाएगा देन अदर मास into the percentage, dividing it by 100। You all are getting 20.2। यही आ रहा है बेटा सबका। Yes, yes, final question for today। Yes, and I'll give you a few more questions in homework। तो आप वो वेनेसडे तक आप लोगों ने करने होंगे। आफ्टर क्लास आई विल सेंड इट लेटर ऑन द ग्रुप। ठीक है बेटा, तो ये आंसर्स आप में से काफियों ने मुझे बता दी, बट स्टिल इफ एनी वन ऑफ यू हैज नॉट गॉट दिस आंसर, you can ask me or you can like discuss it with me। Abdullah, Aisha, Fatima, Huria, Hamna, Mariam, Ayan, Ryan, Umar, Sarah, everything is clear up till now in today's class, and up till now from the first day we are discussing things for atomic structure and all। प्लीज मुझे बता दो बेटा, प्लीज मुझे बता दो। कोई भी चीज़ है, यू कैन आस्क मी। आई अप्रिशिएट you all asking the things that you have, even if they are the slightest issues, because anything, if you not ask, will have like make bigger problems for you later on। So it's good that you are asking even the slightest issues that you have। प्लीज बेटा अभी बता दो। अगेन आई एम आस्किंग, कोई भी मसला है किसी को, कैन क्लियर इट नाउ। ओके। So I'll be giving you a few more questions of this in homework so that you can submit that till Wednesday. And Wednesday we will be then starting like a few more discussions of this, and then the electron shells, the concept of electron shells, and that probably would be the last class of this chapter, and then we'll be having the test of it maybe over the weekend। ठीक है बेटा। I hope everything is clear to all of you। Some of you might have your results tomorrow, so I would say hope for the best and all the best from my side for the result। ठीक है बेटा। Take care everyone। अल्लाह हाफिज।